উপস্থিত রয়েছেন উত্তর পূর্বের সংযোজক শ্রী সম্বিত পাত্র মহোদয়। সবাই প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন সবাই মিলে, এবং আমি আশা করব আপনারা সবাই पुष्पार्घ अर्पणের জন্য বিনীত निवेदन करब। माननीय अतिथि যারা রয়েছেন आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरा विनती है कि जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता और दीनदयाल जी के प्रतिकृति है उसमें पुष्पार्घ अर्पण करें। पुष्पार्घ अर्पणের পর সবাই আসন গ্রহণ করবেন এবং অনুগ্রহ করে माननीय যারা অতিথি রয়েছেন मैं सबसे आग्रह करता हूं विनम्रता से कि आप मंच पे अपने आसन ग्रहण करें। इसके बाद वंदे मातरम गीत होंगे। সবাইকে অনুরোধ করব দাঁড়িয়ে বন্দে মাতরম সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করার জন্য। मैं आग्रह करता हूं सबको आप खड़ा हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। এখন বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাবো মাননীয় রাজ্য সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে পুষ্পস্তবকে আপনি মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা মহোদয়কে বরণ করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ জানাবো এই সংকল্পপত্র প্রকাশ এর জন্য কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর অশোক সিনহা মহোদয়কে আপনি উত্তরীয় পরিয়ে माननीय राष्ट्रीय सभापति महोदय के बरण कर नेबेन। विनम्रता से आग्रह करता हूं आदरणीय त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी को और डॉक्टर अशोक सिन्हा जी को कि आप दोनों आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। এখন অনুরোধ জানাবো বাকি যারা অতিথি রয়েছেন সবাইকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। हाँ हाँ दीजिए तीन टीम।
এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে এই সংকল্প পত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। 2023-এ যে আমাদের যে বিধানসভার যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেই উপলক্ষে আজকের আমাদের যে ইস্তেহার বা সংকল্পপত্র যার নাম দিয়েছি, তার এখানে আজকে ইনঅগুরেশন হবে। সেই ইনঅগুরেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সবার প্রিয়, আদরণীয়, পূজনীয় সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি। আমি আজকের এই প্রোগ্রামে ওনার হাত ধরে এই সংকল্পপত্র ঘোষণা করা হবে, তার প্রকাশ করা হবে। এর জন্য ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। মঞ্চে এই উপলক্ষে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের মাননীয় ডেপুটি চিফ মিনিস্টার শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত সবার প্রিয় আমাদের রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং অনারেবল MOS শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, এবং আমাদের নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সম্বিত পাত্র, এবং উপস্থিত আছেন ডক্টর মহেন্দ্র সিং, আমাদের ইলেকশন ইনচার্জ, ডক্টর মহেশ শর্মাজি, আমাদের স্টেট প্রভারী, এবং ডক্টর অশোক সিনহা, চেয়ারম্যান ম্যানিফেস্টো কমিটি, যার উদ্যোগে আমাদের আজকের এই ম্যানিফেস্টোর যে এখানে রিলিজ হবে, ওনার টিম, ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বন্ধুগণ, ইলেকশন আমাদের কাছে, ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় মানুষের জন্য কাজ করে, সেবাই আমাদের সংগঠন, আমরা সবসময় বলি। এবং যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির একটাই স্লোগান, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর প্রয়াস। সেই হিসাবে আমরা কাজ করি। এবং ইলেকশন আমাদের আসবে যাবে, কিন্তু ইলেকশনও আমরা কোনো অবস্থায় আমরা খাটো করে দেখি না, আমরা সবসময় সিরিয়াসলি দেখি। এবং সেইভাবেই আজকের এখানে যে ইস্তেহার আজকে প্রকাশ হতে যাচ্ছে, মানুষের কল্যাণে, মানুষের বিশ্বাস নিয়ে আমরা যেভাবে 5 বছর আমাদের এই সরকার এখানে পরিচালিত হয়েছে, এবং আমাদের গার্জিয়ান হিসাবে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের মার্গদর্শন দেখিয়েছেন, সেইভাবে আমাদের সরকারকে আমরা এখানে পরিচালনা করেছি। তো আগামী দিন আমাদের ইলেকশনের রেজাল্ট 2 তারিখ মার্চের হবে, এবং 16 তারিখ আমাদের এই মাসেই আমাদের ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমি এখানে যারা উপস্থিত আছেন, সমস্ত যারা কার্যকর্তারা আছেন, সবাইকে আমি একটা কথাই বলবো যে আমাদের আর সময় নেই। আমাদের এই ইলেকশনকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এবং সিরিয়াসলি আমরা যেন সবাই কাজ করি এবং সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব। এবং আমি নিশ্চিত, যেভাবে আমরা সব জায়গায় গেছি, যে শুধু সময়ের অপেক্ষা, 2 তারিখের অপেক্ষা, আমরা আবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সবাইকে এখানে মঞ্চে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এবারে অনুরোধ জানাবো সংকল্পপত্র 2023 এর প্রস্তুতি কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর অশোক সিনহা মহোদয়কে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। माननीय राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, माननीय उपमुख्यमंत्री आमादेर राज्य सभापति राजीव भट्टाचार्य जी महोदय, डॉक्टर संबित पात्रा जी, विप्लव कुमार देव जी, आमादेर ऑनरेबल MP,
আমাদের এমওএস, আমি দিদি বলি, অন্য কিছু বলবো না, প্রতিমা দি, মহেশ শর্মাজি, ডক্টর মহেন্দ্র সিং জি, আর আমার সামনে যারা আছেন বিজেপির কার্যকর্তা, যারা আসলে বিজেপির মেরুদণ্ড, তাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি দু একটা কথা বলছি। সংকল্পপত্র তৈরি করার যখন আদেশটা পেলাম, ধন্যবাদ দিয়েছি আমাদের রাজ্য সভাপতিকে। আর একটা জিনিস যেটা প্রথমেই তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, যে এবারের সংকল্পপত্র আমাদের তরফ থেকে হবে না, সেটা হবে মানুষ আমাদের কাছে কি চাইছে সেটাকে খুঁজে বের করা এবং সেটা আমাদের সংকল্পপত্রে আনা। এই জন্য আমরা অজস্র মিটিং করেছি শিক্ষকদের সঙ্গে, ছাত্রদের সঙ্গে, ডাক্তারদের সঙ্গে, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে, খেলোয়াড়দের সঙ্গে, গায়কদের সঙ্গে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে অজস্র মিটিং করেছি, অজস্রভাবে তাদের কাছে গেছি। আমরা বাক্স বানিয়েছি যেখানে তারা সাজেশন রাখতে পারেন, সেই বাক্স আমরা পুরো রাজ্যে পাঠিয়েছি এবং বিশ্বাস করবেন না, হাজার 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 সাজেশন আমাদের কাছে এসছে। সেই সমস্ত সাজেশন, আমার সেই এফিশিয়েন্ট টিম আছে, তাদের নিয়ে আমরা বসে সমস্ত সাজেশন দেখে আমরা সেখান থেকে বের করেছি। এখন সমস্ত সাজেশন আমরা সংকল্পপত্রে ঢোকাতে পারিনি, সম্ভব না, কিন্তু তার মানে এই না যে সমস্ত সাজেশন আমরা সংকল্পপত্রে ঢুকাইনি সেটা বাদ পড়েছে। সেটা আছে আমার কাছে, সেটাও আমাদের কাজ, কিন্তু সংকল্পপত্রে একটা সীমা থাকে, তার মধ্যেও এটা বেশ বড় হয়ে গেছে কারণ অনেক সাজেশন পেয়েছি। আমি আশা করছি এই সংকল্পপত্রটা দেখে আপনারা বুঝবেন যে আপনারা আমাদের কাছে কি চাইছেন, সেই কথাই আমরা বলেছি। আর অনুরোধ রাখবো সংকল্পপত্রটা দেখে আপনাদের সাজেশন আবার আমাদের জানাবেন। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। भारत माता की जय। अभी वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के हाथ से संकल्प पत्र 2023 का अनावरण होना है। मैं विनती करता हूं भारतीय जनता पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो इस संकल्प पत्र का अनावरण करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं विनती से आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को कि आप यहां पर पधारे और अपना दिशा निर्देश हमें दे। आज के इस संकल्प पत्र 2023 के कार्यक्रम के अनावरण में मंच पर उपस्थित हमारे त्रिपुरा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मानिक साहा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मेरे राज्यसभा में साथी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता
श्री बिप्लब कुमार देव जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री और अभी हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर श्री संवित पात्रा जी, हमारे इलेक्शन इंचार्ज और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में श्री महेंद्र सिंह जी, लोकसभा में मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी और चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे अशोक सिन्हा जी और हमारे लोकसभा में साथी श्री रेवती जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है, इट इज माय प्राउड प्रिविलेज दैट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द salient features of the manifesto of 2023, which we call it as a Sankalp Patra, which we call it as a commitment paper. इस संकल्प पत्र 2023 की जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं इसके साथ साथ इस संकल्प पत्र के सीरियसनेस के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। और जब मैं सीरियसनेस पर चर्चा करना चाहता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई मैनिफेस्टो, कोई विजन पेपर लेकर के आते हैं तो उनको उसकी पार्टी वाले ही सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दूसरे लोग और समाज क्या सीरियस लेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट पेपर लेकर के आती है, कोई संकल्प पत्र लेके आती है, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आती है, इट इज नॉट ओनली अ पीस ऑफ पेपर, इट इज नॉट ओनली जार्गन ऑफ वर्ड्स, इट इज द कमिटमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी टुवर्ड द पीपल ऑफ त्रिपुरा। और इसलिए सारा देश, त्रिपुरा के लोग, सारे राजनीतिक दृष्टि से जानकार लोग इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज द रोड मैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस। वह एक रोड मैप है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो रिलीज का जो कार्यक्रम चलता रहा है, हम भी राजनीति में लंबे समय से रहे, हमने देखा है लोग मैनिफेस्टो निकालते थे, भूल जाते थे, नए वायदे लेकर के नए उसको पैकेज में फिर से उन्हीं बातों को दोहराने के लिए चले आते थे और पुराने वादे भूल जाना, नए नए तरीके से विषयों को रखना, ये समय की संस्कृति थी। लेकिन यहां आई हैव द प्राउड प्रिविलेज टू से दैट आई रिप्रेजेंट द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, which has a leader like Narendra Modi, which has changed the political culture of the country that we have to understand. कभी आपने सुना था कि कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है? कभी किसी नेता को 70 साल में सुना आपने? I would like to ask you a question. Did you hear any leader coming out with a report card for the last 70 years? बट जब हम आपके सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जब सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और आगे का रोड मैप बताता है। When I talk about 2018, 2018 की जब मैं बात करता हूं तो 2018 त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का, निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार का,
निकास द्वार साबित हुआ है करप्शन एंड कमीशन का, निकास द्वार साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का, निकास द्वार साबित हुआ है लेवी की राजनीति का। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है, और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। यह फर्क हमको समझना चाहिए। अब ये सिर्फ मैं शब्दावली नहीं बोल रहा हूं, जो लोग 2018 के पहले के त्रिपुरा को जानते हैं उनको अच्छी तरीके से याद होगा कि जो मैंने शब्द बोले हैं वो एक एक शब्द सही निकले हैं। आप लोगों ने हमें जन समर्थन दिया, 43% का वोट आपने हमको शेयर दिया, हम धन्यवादी हैं, लेकिन हमने उसका आदर रखते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया, और त्रिपुरा जो बंद ब्लॉकेड इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था उससे मुक्ति दिला करके पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड हार्मनी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभावग्रस्त त्रिपुरा से आज समृद्ध त्रिपुरा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्दों के साथ बताना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है। And no political party has the guts to say like this, which I am saying when I talk about भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा था कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, हम सबको घर बनाने, जो कच्चे मकान में रहता है उसको पक्के मकान देंगे। I have the proud privilege to say that in the past 5 years 3,60,00,000 मकान बने हैं देश में, और 3,50,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं, और लगभग 2.5 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है। हर विधानसभा में कम से कम 5,000 एवरेज कंस्टिट्यूएंसी में 2,500 करोड़ की लागत से घर बने हैं त्रिपुरा में। ये मेरे शब्दों को नोट कर लेना। मैं अभी गया था, हमारे एयरपोर्ट के बगल में गांव है, शायद वो मैं गांव का नाम भूल गया, लंकामोरा, और मैंने वहां पर घर देखे। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से कि जाकर के देखिए वो घर। मैं जाकर कहना चाहता हूं कि जाकर के वो घर देखिए, क्या पक्के मकान बने हैं। और जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ियों में रहते थे, आज हम पक्के मकान में हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं, हमने कहा था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल। हमें ये गर्व के साथ कहना होता है कि 2018 में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वाज 3%, टुडे इट इज 55% अंडर जल जीवन मिशन। 1 लाख फंक्शनल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन 2022-23 में दे दिया गया है, और इसी तरीके से हम बड़ी संख्या में इस बजट में प्रावधान करके हम इसको ऑन गोइंग वर्क्स में बढ़ा रहे हैं। हमने कहा था कि हम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को देंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं यहां कह सकता हूं कि 13 लाख आयुष्मान कार्ड त्रिपुरा में लोगों को दिए गए, 13 लाख, और 107 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है, यानी 107 करोड़ रुपीस गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए त्रिपुरा में दिया गया है। और सारे देश में 80,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में खर्च हुए। अगर मैं बात करूं एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ऑल काइंड्स ऑफ फीस ऑफ द गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स रक्षाबंधन गिफ्ट के तहत इसको वेव ऑफ कर दिया। यह त्रिपुरा की सरकार ने किया। अगर मैं बात करूं, हमने कहा था मिनिमम भत्ता 2,000 होगा, और मुझे खुशी है कि मैं ये कहता हूं
कि सोशल पेंशन वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं, और इसी के साथ हमने कहा था कि हमारा मिनिमम वेजेस 340 रुपीज होगा, दैट वाज आल्सो कमिटेड एंड डन। हमने कहा था हम स्मार्टफोन्स देंगे, हजारों की संख्या में स्मार्टफोन्स हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया गया, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वी हैड प्रॉमिस्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, और उसके लिए एमएसपी, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 1,30,000 मेट्रिक टन पैडी इसको हमने प्रोक्योर किया और 70,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला और 243 करोड़ इसमें खर्च हुए थे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू कि एम्फसाइज ऑन वन थिंग, कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, इसलिए जो आज हम कहेंगे वो त्रिपुरा का रोड मैप बनने वाला है, इस बात को भी हमको याद रखना होगा। और मैं यहां पर अब आपको वो भी कहना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है। अब मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो नहीं कहा था फिर भी करके दिया है, उसकी भी आपको भी आप याद रखिए। और जब मैं उसकी बात करता हूं तो हमारे गवर्नमेंट रिजर्व में 50% मार्केट स्टॉल्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वे रिजर्व फॉर वुमेन, कहा नहीं था, करके दिया है। और 400 करोड़ रुपीस इस पॉलिसी पर खर्च हो रहा है। उसी तरीके से 15 नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए और अभी के बजट में सारे देश के लिए 38,800 टीचर्स की रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से वन अधिकार ऐप बना करके हम लोगों ने सुविधा दी फॉरेस्ट में रहने वाले हमारे जनजाति भाइयों के लिए, और 1,30,000 फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जमीन का पट्टा दिया गया है। कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था, लेकिन आज आदिवासी भाई जमीन का पट्टा लेकर के बैठा है और उनकी संख्या है 1,30,000 हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये हमने करके दिया है। उसी तरीके से कभी हमने नहीं कहा था कि हम आपको वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा को 1,300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट मिला है और लगभग 4,10,000 इसके बेनिफिशियरी फैमिलीज होंगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑल दिस डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। अगर मैं बात करूं तो 7,005 हमारे जो ब्रू के डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के उनको राशन कार्ड पहुंचाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये 37 साल पुराना विषय था, 23 इयर्स का विषय, 37,000 ब्रू रहने वाले हमारे लोग, उनको रिसाइड करने का और उनको फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो वह भी हमारी सरकार ने किया है और 600 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंड और ब्रू रियांग का समझौता हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बुद्धा यूनिवर्सिटी अब सून ही ऑपरेशनल हो जाएगी। हमारे 84,000 हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है एससी कम्युनिटी के, और उसमें लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारी ट्रिपल IIIT इसका फर्स्ट बैच निकल गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज हमारे विद्यार्थियों को जो मिला है वो 1,15,00,000 का है, जो हमारे यहाँ के ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स ने। और जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज हुआ है वो 45 लाख का हुआ है और एवरेज पैकेज 22 लाख रुपए का हुआ है। दिस इज डेवलपमेंट। ये है त्रिपुरा के नौजवानों की आकांक्षाओं को, उनकी उड़ान को पर देने का काम हुआ है, उसको भी हमको समझना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। सेंटर फॉर नेशनल फोरेंसिक्स साइंसेज यूनिवर्सिटी का, उसका भी शिलान्यास किया है। हालांकि उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनने के लिए शिलान्यास किया गया है। पर कैपिटा इनकम ऑफ त्रिपुरा in 2018 was 90,000 rupees. Today in 2022 the per capita income of Tripura is 1,58,000 rupees. ये मैंने आंकड़े आपके सामने रखे।
दो सेगमेंट्स की हमने चर्चा की। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। और अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो हम करने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया गया क्योंकि हिस्ट्री सेज, व्हाट इज द गारंटी दैट व्हाट आई से टुडे आई विल डू इट टुमारो? क्या गारंटी है? गारंटी यह है कि हमारा इतिहास इस प्रकार का है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं, तो जो कहा है वो भी करके दिखाएंगे। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि ये 5 साल की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो होगा ही, विकास का तो होगा ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, वी बिलीव इन हीरा, हाईवेज, H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, हमारे A फॉर एयरवेज। हर तरीके से विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं, त्रिपुरा में 2018 में भी आया था, एयरपोर्ट से उतरता था तो पता लगता था पता नहीं किस कस्बे में घुस रहा हूं मैं। आज मैं जब त्रिपुरा आता हूं, एयरपोर्ट से उतरता हूं तो 4 लेन बन रहा है, चौड़ी सड़कें। आपने त्रिपुरा के अगरतला की मार्केट के रोड्स देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से खर्च हो रहा है, दूर डिस्टेंट गांव को, लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, युवाओं पे खर्चा, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे किसानों का सशक्तिकरण, हमारे SC भाइयों का सशक्तिकरण, हमारे ट्राइबल भाइयों का सशक्तिकरण, ये हमारे कोर विषय हैं जिनको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए सबसे पहली बात ये कि बालिका समृद्धि स्कीम में हम लोगों ने तय किया है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड हर परिवार को, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को, अगर लक्ष्मी आती है घर में तो उसको दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय किया। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत हमारे कॉलेज गोइंग मेरिटोरियस बहनों को फ्री स्कूटी दी जाएगी ताकि वो वहां पहुंच सके। हमारे उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 2 मुफ्त LPG गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार 5 रुपए के हिसाब से मील का प्रावधान किया जाएगा, प्रति मील। त्रिपुरा जनजाति विकास योजना के तहत सालाना हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी भाइयों के परिवारों को 5,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल का स्कूल बनाया जाएगा। हमारे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ट्राइबल यूनिवर्सिटी गांडाथ्विसा में स्थापित की जाएगी ताकि हमारे उनका विकास हो सके। उसी तरीके से हमारे समाजपति के लिए प्रधान समाजपति को जो ऑनरेरियम 2,000 का मिलता है वो अब 5,000 रुपए का दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो साल में 6,000 रुपए का असिस्टेंस मिलता है, उसमें प्रदेश सरकार 2,000 जोड़कर 8,000 साल में दिया जाएगा। उसी तरीके से हमारे भूमिहीन किसान विकास योजना के तहत जो हमारे लैंडलेस किसान हैं
उनको 3,000 रुपए का सालाना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत जो हमारे फिशरमैन हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हर साल 6,000 रुपए का दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कृषक के साथ साथ जो हमारे मछली उत्पादन में लगे हुए लोग हैं, उनको भी बराबर का स्थान दिया जाएगा। हमारे जो आयुष्मान भारत है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें 13 लाख कार्ड बंटे हैं, जिनको 5 लाख रुपए का एनुअल कवर मिल रहा है, उसको 10 लाख रुपए का एनुअल कवर दिया जाएगा। हमारे त्रिपुरा के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास होगा। हमारे जनजाति भाइयों के लिए जो हमारा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें हमारा प्रयास है कि ये जो TTAADC है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। विधायी कार्य के लिए और ताकत दी जाएगी। एडिशनल लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाएंगी। एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हमारे फ्रेमवर्क में 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आता है, उसके तहत ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दिया जाएगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे बजटरी एलोकेशंस को काउंसिल के जनसंख्या के प्रोपोर्शन में उस एरिया का फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाएगा और बजटरी प्रावधान किया जाएगा। जो हमारा काउंसिल के अंतर्गत दायरे में आने वाला एरिया है, उसी तरीके से जो हमारे भाषा का सवाल है, जिसको हम कॉकबोरोक लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, उसको CBSE में और ICSE में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारे उन भाषाओं के बारे में सलाह करके उसको भी जोड़ा जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से जो हमारे कस्टमरी कोर्ट्स फॉर ट्राइबल्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को ऑथराइज किया जाएगा कि वह उसके लिए काउंसिल को सेटअप किया जाए। उसी तरीके से हमारे काउंसिल भवन्स अक्रॉस द कंट्री बने, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को सुविधा हो सके। तो काउंसिल भवन बनाने की भी शिरकत करेगी त्रिपुरा की सरकार, और हमारी पार्टी इस बात के लिए हम काम करेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए त्रिपुरा कमर्शियल क्रॉप मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, अगर के लिए, बैम्बू इंडस्ट्री के लिए और रबर के लिए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रयास होगा। उसी तरीके से यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैम्बू टेक्नोलॉजी वह भी स्थापित की जाएगी। और इसी के साथ साथ मिनी रबर मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ताकि रबर इंडस्ट्री डेवलप कर सके, उस पर भी खर्च होगा। हमारे युवाओं के लिए त्रिपुरा कौशल विकास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 लाख हमारे ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने आप में अपने पांव पर खड़ा हो सके। उसी तरीके से मंतु देवनाथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा। उसी तरीके से 50,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री युवा योगा युग योजना के तहत स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। इस बात का प्रावधान किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे 400 गवर्नमेंट स्कूल्स को PM श्री के तहत
और विद्या ज्योति स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत खर्च करके इन स्कूलों को मॉडर्नाइज स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। हम यहां पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स अगरतला को भी हम स्थापित करेंगे ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस के तहत जो प्रति घरे सुशासन है, यानी हर घर सुशासन के फल पहुंचे, उसको 2.0 के तहत इंश्योर करेंगे। बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्राम पंचायत पर फोकस किया जाएगा और हिली डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष करके इस कार्य को किया जाएगा। हमारे ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ऑर्थोनीतिक उन्नयन, इसमें मेक इन त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट में वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाया जाएगा। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे। और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जो रबर, बैम्बू और अगर को इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा उन्नत ग्राम फंड के तहत, यानी त्रिपुरा के गांव उन्नत हों, इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सोबार विकास, सबके लिए, सबके विकास के लिए हम जो लैंड के पट्टा हैं, वह जमीन के जो पट्टा हैं, वो एलिजिबल लैंडलेस सिटीजन्स को मुहैया कराएंगे और हमारे दलित भाई और ट्राइबल भाइयों को विशेष ध्यान देकर के इस काम को किया जाएगा। और इसलिए बीजेपी का लक्ष्य है कि डिवाइन ताकत के साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया जाए और डिवीजन से बचाया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम डीटीएच मॉडल पे काम करेंगे। डी फॉर डेवलपमेंट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एच फॉर हार्मनी। हम इस हार्मनी के साथ काम करेंगे। मित्रों, ये जो हमारा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, इस कमिटमेंट के साथ, इन बातों के साथ 2023 की आपके समर्थन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी और नई उमंग के साथ हम फिर से श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, उनका ये बहुमूल्य बातें हमारे सामने रखने के लिए। ये त्रिपुरा को कहां से कहां ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जारी है, इसका पूरा एक छवि हमारे सामने उन्होंने रखा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं। और अभी हम लोग ये संकल्प पत्र 2023 के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हम सब देखेंगे। विनती करता हूं कि ये ऑडियो विजुअल हमें दिखाई जाए। ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিজেপির নতুন শপথ সংকল্পপত্র 2023। ত্রিপুরার প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়ে সমাজে প্রতিটি মানুষের সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের নতুন ভবিষ্যৎ লিখবে বিজেপির সংকল্পপত্র 2023। আগামী 5 বছরে ত্রিপুরার ঘরে ঘরে পৌঁছবে উন্নয়নের নতুন জোয়ার। প্রকৃত অর্থেই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে গড়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। সংকল্পপত্র 2023-এর প্রধান সংকল্পগুলি: কন্যা সন্তান জন্ম হলে বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে 50,000 টাকার আর্থিক সহায়তা। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার আওতায় মেধাবী কলেজ ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান। পিএম উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় সকল সুবিধাভোগীকে বিনামূল্যে 2টি সিলিন্ডার। সকল যোগ্য ভূমিহীন নাগরিকদের জমির পাট্টা প্রদান। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় 2025 সালের মধ্যে রাজ্যের শহর এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি।
পিএম কিষাণ যোজনায় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ 6,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 8,000 টাকা করা হবে। অনুকূল চন্দ্র ক্যান্টিন তৈরি করে ভর্তুকিযুক্ত খাবার দেওয়া হবে। প্রতিবার মাত্র 5 টাকা খরচে দিনে 3 বার এই খাবার পাওয়া যাবে। প্রস্তাবিত 125তম সংবিধান সংশোধনী বিলের কাঠামোর আওতায় টিটিএডিসিকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন, অতিরিক্ত আইনি, নির্বাহী, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্গঠন করা হবে। ত্রিপুরা জনজাতি বিকাশ যোজনার আওতায় জনজাতি পরিবারগুলিকে বছরে 5,000 টাকা সহায়তা। জনজাতি সংস্কৃতির গবেষণা, সংরক্ষণ এবং প্রচারের লক্ষ্যে গন্ডাছড়ায় মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রধান সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা 2,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 5,000 টাকা করা হবে। ভূমিহীন কিষাণ বিকাশ যোজনার আওতায় সমস্ত ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি বছর 3,000 টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান। মৎস্য সহায়ক যোজনার আওতায় সমস্ত মৎস্যজীবীদের বছরে 6,000 টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান। জল জীবন মিশনের আওতায় 2024 সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে প্রতি পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বে রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে পৌঁছবে ত্রিপুরা। এবার ত্রিপুরার সুবিধাভোগীদের মুখে শুনে নিন কিভাবে বিগত 5 বছরে বিজেপি সরকার উন্নয়ন সাধন করেছে। যে ঘরের টাকা এসেছিল, এই টাকা পেয়েছি, এই টাকা পেয়ে ঘর করেছি। হ্যাঁ, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে, প্রধানমন্ত্রীজিকে আর আমার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীজিকে। আমি আগে মাটির কাঁচা করে থাকতাম, অনেক বৃষ্টি, তুফান, শীত, বর্ষা অনেক কষ্ট পেয়েছি। তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আমাকে একটি পাকা ঘর দিয়েছি। তাই আমি এখন সুখে শান্তিতে বাস করতে পারি। ঘর পাইছে, জল পাইছে, আর 2 টাকা চালও পাইছি, সব পাইছি তো। কিন্তু জলটা পাওয়ার পরে, কারেন্টটা পাওয়ার পরে আমাদের সুবিধা হয়েছে। যেমন আমাদের রান্না ঠিক টাইমে হচ্ছে, বাচ্চাদের ঠিক মতো স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে, কোনো লেট হচ্ছে না। তার জন্য আমি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। জলের কানেকশন পাওয়ার পরে থেকে মোটামুটি অনেক সুবিধা হয়েছে। স্কুল বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে, টাইমলি রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে। ছেলেরা অফিস আদালতে যাইতো, অনেক টাইমলি রান্না বান্না হলে খাওয়া দাওয়া করে যাইতে পারতেছে। অনেক শাকসবজি লাগাইতাম পারতেছি, অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে। এখন আমাদের সাপ্লাই দিছে, এখন আমরা জলের জন্য এখন সুবিধা হয়েছে। আমরা এখন ভালোই চলাচল করতে পারি জল নিয়ে, আমরা এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। আমার নাম আবুল হোসেন, 6 নং বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। আমি বিজেপি সরকার আসব, আমি এই আমার বসত ঘরটা পাইছি। রাস্তার দিনের কাজ হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জায়গায় রাস্তার কাজ হয়েছে, কিছু কিছু জায়গা বেতন দেওয়া পারছে। অনেক ভালো লাগছে, আমি অনলাইন ক্লাস করতে পারিনি মোবাইলের জন্য। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে মোবাইল দিয়েছে, এখন ক্লাস করতে পারবো, আমার ভালো লাগছে। আমি কোনো ক্লাস করতে পারি না, আমি 10 ক্যান্ডিডেট এবার। তো আমি অনেকগুলো ক্লাসে আমার মিস গেছে, বাবা বাড়িতে থাকেন না, কাজের জন্য বেরিয়ে যায়, আমি কোনো ক্লাসই করতে পারি না। তো আমি এটা পেয়ে খুবই খুশি এবং খুবই উপকৃত হয়েছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বর্তমান সরকারে যে আমাদের ধানটা এফসিআর মাধ্যমে যে ক্রয় করতেছে, সেটা আমাদের খুব সুবিধা। আগে আমরা এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা পাই নাই। এখন যে 20 টাকা 40 পয়সা দরের দাম কিনতেছে, সেটা আমাদের অনেক কৃষকের উপকৃত হইতেছে। এবং যে আমরা যে কৃষক ভাতা পাইতেছি, সেটা আমাদের বর্তমান সরকারের মাধ্যমে আমরা যে পাওনাটা, এটা আমাদের অনেক সহায়তা। আমি একজন শ্রমিক হিসেবে আমি আমার ছেলে মেয়ে পড়াশোনার জন্য আমি যে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়, স্টাইপেন্ড আমি পেয়েছি রাজ্য সরকার থেকে। বিজেপি সরকার এসেছে বলে আমি লেবার কার্ড করেছি, ওই টাকাটা পাচ্ছি। আমার অনেক সুবিধা হয়েছে, আমার ফাঁক শাক করতে খুব সুবিধা হয়। নাহলে তো আমরা চুলার মধ্যে রান্দাবাড়ি করছি, অনেক সময় আনতাম পারছি, অনেক সময় না পারছি, খুব কষ্ট হয়েছে, অনেক সুবিধা হয়েছে। কেমন বল, আমরা গরিব মানুষ, তো চালডি ভাই আমরা খাইতাছি,
গ্যাসটা দিছে ওখানে, ওই তো গ্যাসের মধ্যে রান্না করতেছি, আমরা চলতেছে সংসার, আমরা লিগে খুব ভালো হয়েছে। আমরা খুব গরিব অবস্থা, কোনোটা রান্না বান্নার কোনো সুবিধা পায় না। এখন এই নরেন্দ্র মোদী যোজনায় যাই হোক দুঃখে কষ্টে পাইছি, এই গ্যাস পাইছি। আগামী 5 বছরে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্নকে সফল করতে এবং ত্রিপুরাকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিতে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। 23-এ আবার বিজেপি সরকার। পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন, বিজেপিকে জিতিয়ে দিন। যারা কার্যকর্তারা রয়েছেন বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো সবাই আর কিছুটা সময় হলের ভেতরে সুশৃঙ্খল ভাবে থাকবেন। এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন সামগ্রী আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজিকে কিছু সামগ্রী প্রদান করবেন উপহার হিসেবে। প্রথমে বাঁশ বেতের তৈরি সামগ্রী প্রদান করছেন ভজন শর্মা মিনাশীল, চলে আসবেন। এগুলি হচ্ছে আমাদের স্থানীয় উৎপাদন, অর্থাৎ তারা কিরকম বানাচ্ছে, যেটা বাঁশ বেতের সামগ্রী গোটা বিশ্বের বাজারে আমাদের চলছে, সারা দেশের মধ্যে এগুলি রয়েছে, এগুলি তুলে দিচ্ছেন ভজন শর্মা মিনাশীল। তারপর সুরজিৎ দেবনাথ, শুভজিৎ দাস। ত্রিপুরার চা পাতাও গোটা দেশে এবং বিদেশেও তার সমাদর চলছে, এবং সেই চা পাতার বঙ্কি তাঁতি, মাধবী কন্দ, সোনিয়া দাস, চন্দনা মুন্ডা, সুমিত্রা মুন্ডা, ওনারা চা পাতা তুলে দেবেন। প্রথম বাঁশের সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে যা ত্রিপুরায় তৈরি হয়, এবং বিশেষ করে বাঁশের তৈরি জলের বোতল গোটা পৃথিবীর বাজারে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেন ভোকাল ফর লোকাল, এবং আমাদের উৎপাদিত সামগ্রী চা সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন বঙ্কি তাঁতি, মাধবী কন্দ, সোনিয়া দাস, চন্দনা মুন্ডা, সুমিত্রা মুন্ডা। এরপর আগর সামগ্রী তুলে দেবেন আফসার আলী, শৈলেননাথ। এই আগর ত্রিপুরা রাজ্যের আগামীর অর্থনীতিকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে देवे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को त्रिपुरा का जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स, तारपर राबर থেকে তৈরি প্রোডাক্ট নিয়ে সুভাষ চন্দ্র দেব, বিকাশ দেব, তন্ময় দেব। এরপর প্রস্তুত থাকবেন কিষাণ মোর্চার স্থানীয় কিছু প্রোডাক্ট জহর সাহা, জয়দেব দেববর্মা, লিপিকা দেবনাথ, প্রদীপ বরণ রায়, অভিজিৎ মৌলিক। তাড়াতাড়ি করবেন। কৃষকের লাঙ্গল কোথায়? কিষাণ মোর্চা একটু তাড়াতাড়ি আসবেন দয়া করে। কিষাণ মোর্চা দয়া করে তাড়াতাড়ি আসবেন। সবাই
যারা যারা কিষাণ মোর্চার বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে এসছেন এবং অন্যান্য যারা ইতিমধ্যেই কিছু আমাদের তৈরি সামগ্রী তুলে দিয়েছেন, সবাই মঞ্চে চলে আসুন। বাঁশের তৈরি সামগ্রী কিংবা চা পাতা, আগর, রাবার যারা হাতে তুলে দিয়েছেন তারাও চলে আসুন মঞ্চে। ত্রিপুরা জিতবে আবার, বিকাশের গান শোনাবে বিজেপি। মজবুত ঘর বাড়িতে, গরিবের ওই হাসিতে বিজেপি। বিজেপি একবার আরো